Good morning, ma'am. Welcome to your science class. I hope everyone has seen the notes that I have given you. सबने notes देखे? Notes of changes around us. Yes, ma'am. Have you seen Yes, notes? ma'am. Yes, All ma'am. those notes, everything with notes, and only few questions I have given. क्योंकि notes में सब कुछ included है. Okay, so no need to give so many questions. Whenever we'll do revision, that time I'll give you remaining questions. Everything is covered in the notes. So when you're writing notes, make your own questions in your mind and then you write. And after every point, leave 2 lines and then you write those question answers. Okay, and submit by the time given. जो time given होता है उस time में try to submit your work. Because I have to give you for getting to know plants का भी देना है. अगर वो तुम लोग submit करोगे जल्दी, like tomorrow Saturday, कल या परसों तक सबमिट करा दो सब लोग पॉजिटिवली सो दैट आई कैन चेक दैट एंड गिव यू गेटिंग टू नो प्लांट्स ओके सो दैट डे वी वर डूइंग about the roots function of the roots Vaishnavi what are the function of roots what are the functions of roots that we have done that day? It absorbs water and minerals. वैष्णवी बोल रही है ये वैष्णवी आई एम आस्किंग वैष्णवी क्योंकि वैष्णवी आंसर नहीं देती कभी Okay, Vaishnavi, tell me what are the functions of roots that we had done that day? 4 functions I told you all. What are those functions of roots? It absorbs soil. Soil absorb करती है. Soil को absorb कर लेती है. थोड़ा सोच के बोलो. What are the functions of roots that we had done that day? वैष्णवी क्या absorb करता है वो? Ma'am, nutrients and Water and nutrients from the soil. मिट्टी में से water और nutrients को absorb करता है. Does not absorb soil को थोड़े ना absorb करता है. Soil में से water and minerals को absorb करता है. That is one function. Second function, only one. Divjot, tell me one function. It holds the soil firmly. It Holds the soil firmly to firmly the to the ground. ground. Vaishnavi, now your turn is over. अभी मत बोलो. Third function, Sonakshi Chaudhary, tell me third function that I told you that day. No, Storage of food. Storage of food. Some of the roots are modified roots that store food in themselves. And fourth function, Akshaya, fourth one, Ma'am, supporting the plant. some of the roots that are kind of modified like hanging or aerial roots, they ऐसे ही लिखना एग्जाम में डायरेक्टली ओनली दे सपोर्ट द प्लांट इतना सा नहीं लिखना ओके वेरी गुड सो ऑल द 4 फंक्शंस हु विल टेल मी ऑल द 4 नाउ जिसने आंसर नहीं दिया वो बच्चा बताओ all the 4 functions together. Ma'am, can I tell? Who will tell me? Not Akshaya, not Vaishnavi, you got a chance. Ma'am, Hanshul, can I? tell me all the 4 functions together. No, Akshaya, you gave an answer, no? Hanshul, जल्दी से बोलो एक बार. Boys answer बहुत कम देते हैं. Can I tell? Raj Singh, you tell. Raj Singh. Only girls are answering, no. Raj Singh, tell me all the 4 functions together. सारे 4 function वापस बताओ एक बार. Raj. it absorbs of vitamins, it absorbs of minerals, it holds the soil permanently, support the plant. And 4 बताए थे ना अभी क्लियरली. कृति है क्लास में. कृति और कौन बच्चा दिख रहा है? Ma'am, can I tell? नो मैं जब नाम बोलती हूँ तो बच्चे. लिपिका दास, यू टेल मी ऑल द 4 functions. It absorbs water and mineral from the soil. हाँ. Hold the soil firmly to the ground. Supporting the plant. Storage of food. जो स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं जो वाले रूट्स उनको कौन से रूट्स बोलते हैं दिवजोत? Modified root. एक है एब्जॉर्ब मींस एब्जॉर्बिंग, एक है ऑब्जर्व जो हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना वो ऑब्जर्व. ठीक है. यहाँ पे दे एब्जॉर्ब मींस सोक. Okay, now we have to discuss different kind of roots. Already this you all have done in your 5th standard and 4th standard. Now I'm going to share screen and show you.
Ma'am, taproot and fibrous root. Yes. So roots are of two types, fibrous root and taproot. Exam में if they ask you to write difference between these two, so मैम फाइब्रस रूट की मेन should रूट know. नहीं होती। हाँ ये देखो, ये फाइब्रस रूट की हमने फोर्थ में भी किया है, हमने फिफ्थ में भी किया है। फाइब्रस रूट डज नॉट हैव मेन रूट, इसमें मेन रूट बिल्कुल तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है ना। ओनली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। ओके, इन दिस इज अ टैप रूट जिसमें इसमें स्टोरेज ऑफ फूड है विच इज अ मॉडिफाइड Ma'am, रूट एंड इट हैज दीस। हाँ fibrous root are spread very much. thread like structure, they hold the soil firmly to the ground. Okay, अभी ये पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद में वॉट एवर डाउट यू हैव विल डिस्कस। ओके, ये जो टैप रूट वाला ये पार्ट है, दिस इज अ मॉडिफाइड रूट एंड इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज मेन रूट, इट स्टोर्स फूड इन इट एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर इसमें है, इनको बोलते हैं लेटरल रूट। Okay, fibrous roots in the plants like grass, the branches of the roots come out from the base of the stem. Stem के base से ऐसे बहुत सारे branches of structure निकलते हैं। Such roots are called fibrous roots. And in some plants, the branches of the root arise from the thick structure. इसमें जो ये lateral roots है ना, ऐसे निकलती हुई roots branches, ये directly stem से निकले हैं। लेकिन in tap root, they are coming out of the tap root, जो main plant है, main root है। So in some plants, the branches of the root arise from thick structure under the ground, which is the main or primary root. ये इसकी primary root है। Such are called tap root. Tap root के examples देखो, ये सारे के सारे are example of tap root. Actually, this and this, they are modified stems. Okay. मैम जो पैरेलल वेनेशन होती है उसमें फाइब्रस रूट होती है और जो रेक्टिलिनियर लीफ वाली वेनेशन होती है उसमें टैप रूट होती है। Saying this, Harshika. मैम हर्षिता। Okay. So one thing Harshika told just now, ये ध्यान में रखना। Say it once again, Harshika. मैम जो पैरेलल वेनेशन होता है Plants that have parallel venation of leaves, वो फाइब्रस रूट होती है, They have उसकी fibrous. फाइब्रस रूट होती है। और जिसमें रेक्टिलिनियर वेनेशन होता है उसमें टैप रूट होती है। very good. ये वाला पॉइंट भी सब लोग ध्यान में रख सकते हैं। दिव्यजोत, कैन यू रिपीट इट व्हाट शी सेड? इसके लिए यू कीप इन माइंड, एलोवेरा का प्लांट माइंड में रखो, उसकी फाइब्रस रूट्स होती हैं तो उसके पैरेलल वेनेशन होते हैं। ओके, कुछ लीव्स तो रिप्रोडक्टिव भी होती है ना? हाँ, कुछ लीव्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्ट प्रोडक्टिव भी होती हैं किसी किसी लीव में। कल Bryophyllum. मुझे एक पिक्चर भेजा था दिव्यजोत, थोड़ी देर बाद शेयर स्क्रीन करना अपना, मेरे पास अभी वो पिक्चर नहीं है, जिसमें शी हैड शोन। दिव्यजोत वो क्या शो किया था? डायरेक्टली इट वाज अटैच्ड टू द स्टेम, देयर वाज नो पेटियोल, उसमें पेटियोल ब्रायोफिलम। हाँ, तो उसने जो शो किया था ना दिव्यजोत, तुमने जो मुझे कल भेजा था एक पिक्चर, वैसा ही वाला एक प्लांट होता है जिस प्लांट की लीफ के साइड से भी लीव्स निकलते हैं। दैट हर्षिका इज टेलिंग ना, उसका नेम क्या है प्लांट का? हर्षिका, डू यू नो नेम ऑफ दैट प्लांट? मैम यस, ब्रायोफिलम। ओके, नाउ सी दिस वन, दिस इज अ टैप रूट। ये जो टैप रूट में ये वाला पार्ट है, ये डोमिनेंट सेंट्रल रूट है, और इसमें से जो ये वाला स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लेटरल, दे आर लेटरल रूट। ओके, ये जो फाइब्रस रूट है, इसमें ये टैप रूट वाला पार्ट मेन रूट नहीं है, डायरेक्टली दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर। Root hair are the fine hair like structure on the branches of roots. Like what do you mean by root hair? Harshika, read this line. What do you mean by root hair? Root hair, the fine hair-like structure on the branches of root are root hair. Like you can see in this picture, इसमें ये जो hair like structure, बाल के जैसा structure निकल के आ रहा है, these are root hair, and this one is called lateral roots. इतना ध्यान में रखना। ओके, what are lateral roots? Now read, Divjot. The smaller roots on tap root are called lateral root. Plants having leaves with reticulate venation have taproot, and plants having leaves with parallel venation have fibrous root. ये अभी इसने बताया था ना जो हर्षिका ने, वो वाला। नैना मालविया, what do you mean by root hair? Naina Malviya, tell me what do you mean by root hair?
नैना, ऐसा लगता है मैं सेम बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि बाकी के बच्चे जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो म्यूट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, सब बच्चों ने आंसर देना है। अंडरस्टूड? अभी मैं दिव्योत, हर्षिका, अक्षया, इन लोगों को नहीं भी देखूंगी ना, इनकी आवाज से मुझे पता चल जाएगा ये लोग हैं। पता चल जाता है ना, क्योंकि ये लोग आंसर देते हैं। तुम रॉन्ग, राइट जैसा आता है, वट एवर यू नो दैट यू शेयर ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग इज रिटन। वो देखकर भी रीड कर सकते हो। मैम कैन आई आंसर? पर डरते डरते बैठे रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। टर्न ऑन योर वीडियोस एवरीवन, आई वांट टू सी एवरीवन। एक बार टर्न ऑन करो। एक जस्टिन है बॉयज में जो बोलता है शौर्य बोलता था, तो शौर्य पता नहीं कहाँ चला गया आजकल। टर्न ऑन योर वीडियोस, आई वांट टू सी एवरीवन। इशिता मराठा, दीक्षा कसाना, हिमांशु, प्रीति मीना, नैना मालवी अभी आंसर्स देती है। अवनी मीना इज देयर ना। अवनी मीना विल टेल मी। अवनी मीना, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, यू टेल मी। बिना देखे बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय रूट हेयर? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रूट हेयर? आरुष बताएगा, वरना बाद में उल्टे सीधे आंसर लिखेगा। आरुष, व्हाट डू यू मीन बाय रूट हेयर? मैम रूट जो आता है बोलो, और वीडियो टर्न ऑन करके बोलो। टर्न ऑन योर वीडियो। आरुष बलिया, टर्न ऑन योर वीडियो एंड से रॉन्ग, राइट जैसा भी आएगा बोलो, जो समझ में आए बोलो। हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, पर बोलो। चैट व्हाट डू यू मीन बाय रूट हेयर? मैम मेरा माइक सही से नहीं चल रहा, क्या मैं चैट बॉक्स में लिख दूं? सही चल रहा है, मुझे सुनाई दे रही है तुम्हारी आवाज, बोलो। आवाज सुनाई दे रही है मुझे, आरुष बोलो। वैष्णवी, यू टेल। A fine hair-like structures on फाइन हेयर लाइक बहुत सारे हैं। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, fine hair-like structure on the branches of root are called root hair. वेरी गुड। नाउ सम अदर चाइल्ड टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल रूट? कोई और बच्चा बताओ अब। अक्षया, टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल रूट्स? The smaller roots on the tap root are called lateral roots. हाँ, लाइक इफ आई हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ लेटरल रूट्स, तो कैसे एग्जांपल दोगे? टेल मी एग्जांपल ऑफ लेटरल रूट्स। कहाँ पे देखने मिलेगी मुझे लेटरल रूट? चेतन लोनारे टेल। चेतन लोनारे। Ma'am, अक्षय स्टॉप नाउ, चेतन विल टेल। हाँ टेल चेतन। आई वांट टू example is carrot. कैरेट। जब कैरेट का वो मोटा वाला पार्ट होता है मेन रूट, उसमें से जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, दैट आर द लेटरल रूट्स ऑफ अ टैप रूट। नाउ ओनली हर्षिका टोल्ड समथिंग अबाउट रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। हार्दिक प्रजापति, टेल मी व्हाट शी टोल्ड। रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन का कुछ बताया था और मैंने भी स्क्रीन में शेयर किया था। व्हाट वाज दैट? व्हाट टाइप ऑफ रूट्स डू प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीव्स हैव? मैम अच्छा, मैम रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? इट्स हैव फाइब्रल रूट्स। हाँ, अभी मुझे ये बता दो, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? किसको पता है? रेज मैम जिसमें टैप रूट होता है। क्या मैंने पूछा? रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? Ma'am, can I tell? हर्षिका, Ma'am, can I? Veins arranged in the net-like pattern on both sides of midrib are called reticulate venation. ये है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। व्हाट इज अ पैरेलल वेनेशन? If veins run parallel to another from the base of the या tip तो of the ऐसा ऐसा leaf, हो, parallel venation. या फिर ऐसा ऐसा हो, then it is a parallel venation. लेकिन पैरेलल वेनेशन तो ऐसा ही होता है ना, ऐसे ऐसे हाँ, तो वो नहीं। ये भी पैरेलल है, जिसमें ये वाले लाइंस ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट होते हैं ना। मैंने उस दिन दिखाया था तुम्हें, जैसे बनाना में भी होता है। Ma'am, बनाना banana. में ऐसा ऐसा देखा है ना, बनाना में। मैम लिली, Yes, ma'am. दैट इज पैरेलल वेनेशन। मैम ओके, लिली, जिन प्लांट्स का पैरेलल वेनेशन होता है उनके रूट्स कैसे होते हैं? मैम मैं बताऊं? मैम फाइब्रस रूट।
Plants having leaves with reticulate venation have taproot, and plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. See, this is a primary root, this is a lateral root which is coming out, and these small are root hairs, and this down one is the root tip or root cap. ये पूरा रूट का स्ट्रक्चर है. अगर एग्जाम में रूट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आया, गेटिंग टू बहुत सारे नोट्स होंगे, इसलिए तुम लोग चेंजेस अराउंड अस को जल्दी से फिनिश करो. इसमें बहुत सारी ड्राइंग्स एंड बहुत सारे नोट्स हैं. अगर मैं ये वाली पीडीएफ आप सेंड करोगे कि हम अभी डेफिनेशन लिख ले? क्या ये पीडीएफ आप सेंड करोगे गूगल क्लासरूम में या कितनी सेंड करूंगी? ये तो पढ़ाने के लिए है ना, थोड़ा सा इसको प्रॉपरली करके सेंड करेंगे, लेकिन बहुत सारा होगा तो पार्ट्स में सेंड करेंगे. तुम लोगों को लगेगा मैडम बहुत सारा राइटिंग वर्क दे रही है, लेकिन फिर बहुत सारा मिस हो जाएगा अगर मैं बहुत सारा स्किप करूंगी ना, क्योंकि yesterday also I was feeling कि वो बहुत सारा है तुम लोगों के लिए. ठीक है, तो तुम लोगों को लगता होगा मैडम राइटिंग वर्क बहुत सारा दे रहे हैं, लेकिन I don't have any choice. Okay, now see, this is taproot, this is fibrous root, and this is adventitious root. They develop from the organs of the shoot system. इसका मतलब जो ऊपर शूट सिस्टम है उसमें से ही जब रूट्स निकलते हैं, जैसे कि अपने हैंगिंग रूट्स में निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवेंशियस रूट्स, जो एरियल रूट्स होते हैं. ओके, नाउ हु विल रीड दिस वन प्रॉपर्ली? अच्छा जोर से कौन रीड करेगा? हर्षिका, रीड फ्रॉम हियर. Types of root system. Taproot, prominent in dicot. Primary root grows and become stout. Secondary and tertiary grow from primary root. Fibrous root. टर्शरी मतलब थर्ड. टर्शरी. Fibrous root, prominent in monocots. Root develop from lower nodes. They have same length and diameter. Adventitious root. They develop from organs of shoot system. Okay. Now we'll come down to the flower. अभी फ्लावर वाले पे आते हैं. फ्लावर सबके पास में फ्लावर है. I've seen टेक्स्ट बुक से भी रीडिंग करना लेटर ऑन. फर्स्ट I'll tell you few things. मैम मैंने फ्लावर की रीडिंग पहले से ही कर रखी है. वेरी गुड. तो आज हम फ्लावर के बारे में सब कुछ बताने वाली है. Many children must have read. When you see a flower, like Akshay is going to show us a flower. Akshay, show that flower that you have with you. See, when I see any flower, ये flower वाला part, We have sepals, petals. ये वाला flower सबके पास में होगा ना? So when you have a flower, yes flower ma'am, I have. On hibiscus. yes, hibiscus. Whenever you study a flower, mostly they tell you study with a hibiscus flower, या इसको बोलते हैं shoe flower. इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं. और मैम मैरीगोल्ड और सनफ्लावर को नहीं लेते हैं. मैरीगोल्ड और सनफ्लावर को इसलिए नहीं बोलते हैं. इन योर हायर क्लासेस यू विल स्टडी दैट जो मैरीगोल्ड फूल होता है ना, इट इज नॉट अ सिंगल फ्लावर. वो सिंगल फ्लावर नहीं होता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स का मिक्सचर होता है. ये जो तुम्हारे सामने अभी फ्लावर है ना हिबिस्कस का, दिस इज ऑन सिंगल फ्लावर. अगर तुम बाद में जब स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि जो मैरीगोल्ड वाला फ्लावर है, ये सब जो वो पेरिनेंथ है. छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं. ओके, सो विल स्टडी फ्रॉम हियर. Whenever you see a flower, इसमें एक कलरफुल पार्ट होता है. This colorful part of a flower is called Petals. petals. ये तो सबको पता होगा. Only 4 पार्ट जो मेन पार्ट तुम लोगों को पढ़ना है, that only I'm going to tell you. और जो नीचे ये ग्रीन वाला पार्ट होता है, सेपल्स. sepals. And when you see your flower, उस फ्लावर में एक ये मिडिल वाली लाइन दिखाई दे रही है, Marble. जो तुम्हारे हाथ में फ्लावर, दैट इज मैम कॉल्ड फिर कार्पेल. दिस इज कॉल्ड Pistil. और जो यहाँ से एक ऐसा विद अ कैप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये स्टेमन्स होते हैं. these are stamens. Ma'am, camels. Stamens. Okay. So this, ये जो छोटे छोटे वाले स्ट्रक्चर है ना, ये वाले येलो वाले, इसके ऊपर anther. पोलन ग्रेन्स चिपके रहते हैं. Anther. और इसके ऊपर हाँ. पोलन. एक मिनट जरा म्यूट करो, कुछ बच्चों के घर से बहुत आवाज आ रही है. When you see this flower,
इतने सारे पार्ट्स के नेम नहीं याद रखने हैं. Only 4 parts of a flower you have to keep in mind. One is this colorful part of a plant, that is petal. ठीक है. This middle one, this long one is called pistil. ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट हम का. इसे ये कार्पिल long भी वाला. तो कहते हैं. अभी बता रहे हैं. हाँ, कार्पिल कार्पेल फीमेल भी पार्ट. कहते हैं. अभी सुनो पूरा. पहले ये 4 पार्ट्स अच्छे से ध्यान रखो, ताकि बहुत सारा एक साथ करोगे तो मिक्सचर नहीं होगा. ओके. ये जो मिडिल वाली लाइन है ना, इसके ऊपर अगर किसी के हाथ में फ्लावर है तो वो टच करके देखेगा तो उसका ये टॉप वाला पार्ट इज लिटिल स्टिकी, थोड़ा स्टिकी होता है ना. Yes, ma'am. Yes. ये वाला पार्ट स्टिकी. सिग्मा. तो ये जो लॉन्ग मिडिल पार्ट है ना, दिस इज पिस्टल. ये फीमेल पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, गर्ल पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके. और ये वाले जो हैं छोटे छोटे, दे आर सेम मेन. इसमें मेन है ना, तो ये ध्यान रखना, ये मेल पार्ट है. मेल पार्ट, मेल पार्ट. इसके ऊपर ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये उड़ के स्टिक होते हैं इसमें, जिससे रिप्रोडक्शन होता है ना, वापस से पौधा उगता है वाला. यस मैम. These are called इंसेक्ट हेल्प करते हैं. Then when we come down, एक मिनट, Pollination. ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, these are sepals, SEPALS. वो यहाँ पे लिखा नहीं है. उसके बाद में यहाँ पे एक राउंड पार्ट है, दिस इज ओवरी. ठीक है. ये ओवरी वाला पार्ट है. अगर इसको निकाल के तुम देखोगे तो यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा तुम्हें. दैट आई शो यू इन दिस पिक्चर. इसमें भी होगा. ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज ओवरी. दिखाई दे रहा है ये पार्ट? Yes, ma'am. मैम इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं. और ये जो ये वाले सिग्मा जिसको बोले हैं, स्टेमन वाला पार्ट है. ठीक है. और ये जो नीचे ये वाली लाइन आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल. इतना सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये सेपल्स, दीज आर पेटल्स, दिस इज योर फुल फ्लावर, हिबिस्कस का फ्लावर. दीज आर पेटल्स, दीज आर सेपल्स. ये जो छोटे छोटे ग्रीन वाले निकलते हैं साइड से, यहाँ से, दीज आर सेपल्स. ये लॉन्ग वाला, दिस लॉन्ग वन इज विदाउट दिस वन इज पिस्टल. और इसमें जो ये छोटे छोटे येलो वाले हैं, दे आर स्टेमेन. स्टेमेन से याद रहेगा कि वो मेल पार्ट है, और मिडल वाला है फीमेल पार्ट. इस पे जो येलो येलो थिंग्स हैं, दैट आर पोलन ग्रेन, जो स्टिक होते हैं आकर के इसके ऊपर, जो स्टिकी पार्ट है. ओके. इस तरह से यू कैन ऑल्सो मेक योर एक्टिविटी. आई विल गिव द असाइनमेंट एक्टिविटी फॉर पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो इसी तरह से दिस पिक्चर आई शेयर, है ना, उसको खुद करके देखना तो तुम लोगों को भी समझ में आएगा. ओके. नाउ विल कम हियर. ओके. Flower is usually the most attractive part of a plant. It is also called as modified shoot. Shoot is the upper part of the plant that grows above the ground. जो ground के ऊपर उगता है, that full part is called shoot. उसमें से जो सबसे attractive part है, that is flower. It is called as modified shoot. Now उसके 4 parts तुम्हें ध्यान में रखना है. Only these 4 you have to keep in mind first. ठीक है. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल. एक वीडियो का लिंक आई सेंड यू इन योर गूगल क्लासरूम में, एक शेयर करेंगे स्क्रीन में. वो वाला तुम अच्छे से वीडियो देख लोगे तो तुमको एकदम प्रॉपरली समझ में आएगा. रिमेनिंग पार्ट, यही वाले 4 पार्ट्स को बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो में. अब जो तुम लोगों को दिखाया इन योर हिबिस्कस में दिखाया, उससे आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा. ये इतने सारे पार्ट्स मत देखो, ओनली यू सी द मेन पार्ट. Once again, I'll show you this one. Who will explain those 4 parts? कौन बताएगा अच्छे से एक्सप्लेन करके? Can I tell? कृति ने आज एक भी आंसर नहीं दिया. कृति, टेल. Yes. But of the flower called एकदम क्लियरली एंड शॉर्ट में बताओ, बिल्कुल शॉर्ट में. लाइक आई हैव ड्रॉन दिस फ्लावर हियर. इस फ्लावर में दीज आर व्हाट, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज इट? व्हाट आर दीज, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज दिस? वेट, कृति ने अभी एक भी आंसर नहीं दिया. कृति आंसर देगी. इफ आई हैव टू ड्रॉ अ फ्लावर तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. हाँ बोलो कृति. आता है तो ठीक है, नहीं तो आई विल टेल समवन एल्स. ओके हर्षिका, टेल. The colored part is called
petals. The colorful part of a flower is The called. colorful part of a flower is called petals. The green part of the plant is called Not plant. the Not colored part. at the lower side, the green part that looks like leaf below the plant at the Is called- lowermost bottom of the flower is called. Is called sepal. Wait. Now, Akshaya, you have that hibiscus flower. और किसके पास है hibiscus flower? मैम मेरे उसको पास जरा तोड़ के उसका सेपल मुझे अलग करके बताओ, दिखाओ. अच्छे से करना, ऊपर दिखा कर करो. मैं तुमको पिन कर रही हूँ. सोनाक्षी, यू ऑल्सो शो. यस, ये देखो अक्षय ने उसका सेपल वाला पार्ट निकाल दिया. ऐसे करके देखना. सबको दिख रहा है? सबको सेपल वाला पार्ट कैमरा में की Yes, ma'am. दिखा? No, ma'am. मुझे तो दिख रहा है. No, ma'am. Yes, और मैंने भी कैसे अच्छा है. उसके पेटल्स वाला पार्ट भी दिखा दो. अक्षय, शो दैट पेटल वाला पार्ट आल्सो. सोनाक्षी चौधरी, तुमने किया है तो तुम भी करो एक बार, तुमको भी दिखाएंगे. ओके, पूरा फ्लावर रखो सामने. कीप योर फ्लावर. इसने देखो पेटल और सेपल को अलग कर दिया. दिस एवरीवन अंडरस्टूड? नाउ हर्षिका, टेल मी थर्ड पार्ट and Akshaya will show. Akshaya, show third part. The female part of the flower is called ऐसे pistil. मत निकालो, प्रॉपरली निकालो तो नीचे से उसका राउंड भी निकलेगा. धीरे से निकालो. पेटल्स को अलग कर दो, ऐसे पकड़ के, ऐसे तोड़ के अलग कर दो. The female part of the flower is called pistil. ये जो फीमेल पार्ट है देखो, अभी इसमें दिखाया. आगे लाओ. वेरी गुड. ये देखो, ये पूरा का पूरा. और इसमें नीचे वाला जो ये दिखा रही है ना, दिस इज ओवरी. अब ये स्टिकी पार्ट दिखाओ आगे करके. आगे स्टिकी पार्ट. हाँ, दिस इज पिस्टल. और इसमें नेक्स्ट टेल हर्षिका, टेल मी नेक्स्ट वन. The male part of the plant is called stamen. ये वाले, ये येलो वाले स्टेमन. अभी अगर अक्षय टच दैट येलो पार्ट को टच करो, वो तुम्हारे हाथ में भी आ जाएगा. आता है ना हाथ में उसको. इफ इट गेट्स स्टिक्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पिस्टल, वो ये पिस्टल के अपर पार्ट में स्टिक हो जाता है. ये देखो अक्षय के हाथ में भी चिपक गया. ये सारे बच्चे करके देख सकते हैं. ओके, सोनाक्षी चौधरी ऑल्सो हैव अ फ्लावर. तो एक बार सोनाक्षी का भी देख लेते हैं. सोनाक्षी, शो. अलग अलग किया तुमने सब पार्ट. ऐसा तुम लोग, नैना ने भी किया है. देखो, नैना हैज ऑल्सो शोन. वेरी गुड नैना. ऐसा करके देखोगे तो अभी देखो अक्षय को सारे पार्ट्स प्रॉपरली समझ में आए होंगे, है ना. तो वन पिक्चर आई हैड शोन यू जिसमें हिबिस्कस के पार्ट्स को अलग अलग करके स्टिक किया, वो सब बच्चों को करना है आज. ओके, अभी कुछ एग्जाम नहीं है ना. एक हिबिस्कस फ्लावर कहीं से ढूंढ के लाओ और फिर उसमें से पार्ट्स अलग करके लगा के उसको स्टिक करके दिखाओ. सोनाक्षी, हैव यू डन? सोनाक्षी चौधरी, किया है तो शो करो. और नैना ने तो शो किया. अभी सोनाक्षी, Yes, ma'am. शो. ऊपर दिखाओ. आई एम पिनिंग यू. इसके में एकदम अच्छे से निकल गया पिस्टल वाला पार्ट. देखा सबने? इसका लोअर पार्ट दिखाओ. ओवरी वाला पार्ट दिखाओ. ओवरी. इसका नीचे जो पार्ट है व्हाइट कलर का, वो दिखाओ. ऊपर करो. नहीं हो रहा, वो तोड़ दिया होगा तुमने. व्हेन यू आर सेपरेटिंग इट, जब सेपरेट किया तो प्रॉपरली सेपरेट करना है. नीचे का पार्ट अलग निकल जाएगा धीरे से. मैम, पेटल्स को हम खींचेंगे तो अलग हो जाएगा. सारे पेटल्स को निकालेंगे तो अलग अलग पेटल्स जुड़े हुए हैं. पेटल्स अलग अलग हैं. ऑल द 4 पेटल्स. कितने पेटल्स हैं तुमने? अलग अलग पेटल से जुड़ के बनाई फ्लावर. पेटल्स है. ओके, नाउ विल कम डाउन. वेरी गुड. अब ये जो बच्चे करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बाकी के बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए. ओके, नाउ सी. अभी ये वाला पार्ट जो व्हाइट पार्ट उसने दिखाया था, दिस इज ओवरी. इसके अंदर है ये ओव्यूल. ये देखो ओवरी लिखा है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. किसी के घर में छोटे बच्चे की आवाज आ रही है. दिस इज ओवरी. ये पूरे पार्ट का नाम पिस्टल के अंदर है. ये वाला है स्टाइल, ये है स्टिग्मा. ओके, दिस फुल इज ओवरी. उसके अंदर जो व्हाइट पार्ट था उसको और तुम तोड़ोगे अच्छे से, उसका डिसेक्शन कर डालोगे तो दैट इज ओव्यूल. ओके, दिस पार्ट जहां पर वो चिपक रहा था दैट इज एंथर. हर्षिका वाज टेलिंग वन नेम. हर्षिका, क्या नेम बता रहे थे तुम? सी से जो ये फिलामेंट के जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है उसको कनेक्टर बोलते हैं, है ना. ये किसी फिलामेंट, किसी प्लांट में तो एक ही ओव्यूल होता है ना. हाँ,
और जैसे तुमने कभी बल्ब को पास से देखा तो बल्ब के अंदर ऐसा एक फिलामेंट होता है, अगर वो बल्ब फ्यूज होता है तो ये फिलामेंट टूट जाता है, वैसा ही ये इसका फिलामेंट है, स्टेमन का फिलामेंट। ओके, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन रिंग्स और रोल्स, रिंग्स में होते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। नाउ सी, उसके बाद में जब प्लांट को तुम नीचे से देखोगे तो यहाँ पर एक पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेंसिल वर्ड से याद रखो पेडिसिल। दिव्योत, रीड फ्रॉम हियर। मैम जैसे ही मतलब कि लीफ में होता था पेटियोल, वैसे इसके अंदर पेडिसिल होता है। हाँ, जैसे लीफ में पेटियोल होता था वैसे ही इसमें पेडिसिल है। अगर पेंसिल वर्ड याद रखोगे तो यहाँ पे मैं पेंसिल जैसी अगर ड्रॉ कर दूं तो तुम्हें याद रहेगा कि ये जो स्ट्रक्चर एंड इट इज कनेक्टेड विद द प्लांट, जिससे कनेक्टेड है, दैट इज पेडिसिल। नाउ रीड फ्रॉम हियर। दिव्योत को बोला रीड करने के लिए। The stalk that joins a flower to the plant is called the pedicel. The stalk that join, एक स्टॉक है, सीधी सी लाइन है। इट लुक्स लाइक जिसने प्लांट से तोड़ा होगा ना फ्लावर को, उन्होंने देखा होगा। और व्हेन यू सी अ फ्लावर, कोई सा फूल आज जाकर देखोगे थोड़ा बाहर, तुम्हें पता चलेगा जिससे वो अटैच होता है, दैट इज पेडिसिल। एक स्टॉक, सीधा सा स्टॉक। मैम बोगनविलिया में ऐसा होता है। हाँ, बोगनविलिया। हाँ, उसमें भी होता है। joins the flower to the plant is called pedicel. Now see, properly they have shown all the parts, वही वाले parts हैं जो हमने पढ़े। sepals is the, कृति read from here, sepals। ये सब अभी हमने पढ़ के उसको एक बार try करें। Yes ma'am. हाँ, read। Sepals is the outermost hole of the flower. Often they are small, green leaf-like structures. They protect the inner part of flower while it is still a bud. Petals. Still in the bud. Inside the जब ऐसा बड रहता है तो भी उसके बाहर तुम देखना बहुत दूर तक ग्रीन होता है, देखा है ना, Yes, रोज ma'am. फ्लावर में। तो वो उसको Yes. फ्लावर को सेव करके रखता है। सिद्धिका राव, कैन यू सी? सिद्धिका राव रीड करेगी अभी एक बार। पेटल्स वाला Yes, रीड करो ma'am. सिद्धिका। Yes, ma'am, देखा है. Very good. Petals. Inside the sepals, there is the word of petals. Different flowers have petals of different colors. Some flowers have sweet smelling petals. With its color fragrance, the petals attract not only the human beings but also the insects and the birds. Because of the fragrance, उसकी खुशबू के कारण all the birds और insect, butterflies are attracted towards the, ये तुमने हनी बी वाले लेसन में भी पढ़ा था, है ना? मैम वो पॉलिनेशन का काम करते हैं जब बर्ड्स और इंसेक्ट्स आते हैं तब। और वो उनकी बॉडी पे stick हो जाता है और इधर उधर और फिर वो इधर उधर जाते हैं तो उधर भी। जैसे अभी अक्षया ने, प्लीज म्यूट, किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है, उसने अपने हाथ में टच हो गया था, वो इधर उधर फेंक देगी तो वहां पे इट विल वर्क। ओके ना, वेदांत मेवाड़ा रीड फॉर स्टेमन। Ma'am, I have a doubt. Yes, ma'am. Ma'am, Stamen. These are the 4 to 6 in the number and are male reproductive फ्लावर part of the flower. Each stamen is made up of 2 parts, filaments and anther. Anther contains pollen, ये देखो pollen grains. यहाँ पे जो तुमको एक मैंने पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर में, हाँ, ये जो स्टेमन है ये 4 या 6 स्टेमन होते हैं किसी भी प्लांट में। मुझे ये इस तरह से दिखाई नहीं दिया फूल के अंदर, बट वेन एवर यू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर तो इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, इसके पार्ट्स हैं, ये जो टॉप में पार्ट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है क्या? yes ma'am. हाँ, कुछ पूछो। मैम वो जब आपने बोला कि पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं तो वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, फिर वो उससे मतलब कि पेटल्स के जाके स्टेमन के पास नहीं करते कि उसी से पॉलिनेशन होगा, उसी से फूल उगेगा। वो तो जैसे नेक्टर सक करने के लिए फ्लावर्स आते हैं, जैसे वी आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्लावर्स। तो अगर हमने छुआ और हमने किसी और प्लांट को छू दिया तो हम भी पॉलिनेशन का काम हो करेंगे। सकता है। अब मैंने मैंगो इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैंगो का सीड में कहीं गिरा दूंगी और पेड़ उग जाएगा, लेकिन वो बाय चांस हो गया, है ना, जो हम लोगों ने 4th में पढ़ा था। yes ma'am, dispersal of seed. डिस्पर्सल ऑफ सीड दैट वी हैव रेड। तो वो डिस्पर्सल आई डिड नॉट डू लाइक इंटेंशनली, मैंने नहीं किया, बट अनइंटेंशनली इट हैपेंड। लाइक अ bird, a small bird is attracted towards like a flower and bird came to the flower
वो छोटी Yes, वाली ma'am. बर्ड हमिंग बर्ड को देखा होगा तुमने कभी, करता है। उसके बीक से भी टच हो गए पोलन ग्रेन से, दे गॉट स्टक टू द बीक ऑफ दैट बर्ड एंड फ्लू डाउन समवेयर, इट डिड नॉट, इट्स पर्पस वाज नॉट टू टेक द पोलन ग्रेन बट इट हैपेंड, पर हो गया ऐसा, है ना, ऐसे ही हुआ ना। ओके, कौन पढ़ रहा था अभी? इसको फिनिश करते हैं फटाफट क्योंकि टाइम हो गया। वेदांत में वाला फटाफट पढ़ो, ये वाला स्टेमन, स्टेमन हो गया था वेदांत का। पिस्टल मैम मैंने पढ़ लिया था। ओके, जो जल्दी से पढ़ो पिस्टल। It is the innermost part of a plant. Ovary can be divided into 3 parts. स्टिग्मा, स्टाइल एंड यहाँ पे ओवरी इधर आएगा मैम ओव्यूल आएगा ना यहाँ ओव्यूल, और ओव्यूल फर्दर लोक्यूल्स और ओव्यूल्स में डिवाइडेड है, वो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। ये देखो, ये रहा वो जो ओवरी वाला पार्ट था ना नीचे व्हाइट पार्ट, वो अंदर से ऐसा है, उसको कट करेंगे। आज तुम लोग बैठ के डॉक्टर बन जाओ सब लोग और एक प्लांट का ऑपरेशन कर दो एंड यू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। ये सब कट करके फाइंड आउट करो, उसकी पिक्चर्स क्लिक करो, मेक अ पीडीएफ। मैम डिसेक्शन करना है आज हमें फ्लावर का। डिसेक्शन करो आज बैठकर, डिसेक्शन पूरा। ओके, ऑफ अ फ्लावर, अच्छा सा फ्लावर लेना, थोड़ा ऐसा टूटा फूटा सा मत लेना, अच्छा हार्ड वाला अच्छा फ्लावर लेकर। मैम रोज ले ले। हाँ, रोज में तुमको ऐसा करने नहीं होगा, इसलिए आई एम टेलिंग यू हिबिस्कस लोगे तो बहुत अच्छा है। आजकल बहुत सारे हिबिस्कस ओके मैम। है ना, हिबिस्कस लोगे तो तुमको ये पिस्टल नहीं होती? हाँ, रोज में पिस्टल नहीं होती? रोज में होती है, उसको बहुत ध्यान से देखना तुम। रोज में जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, पॉलन उसी पे चिपके होते हैं, बट मैम उसके अंदर बहुत छोटी छोटी रहती है। हिबिस्कस में मतलब बहुत छोटी छोटी है ना। मैम बोगनविलिया तो बहुत ही छोटा सा होता है, उसके अंदर तो पिस्टल तो कहीं दिखाई नहीं उसको देती। तुम देखना अच्छे से, और सारे फ्लावर में नहीं होता, इसलिए आई टेल यू टू रीड दिस वन, इस वाले फ्लावर को इसलिए। मैम पेरिनेंस भी होता है ना कुछ प्लांट जिसमें सेपल्स भी कलर्ड होती हैं। सबके बॉडी पार्ट्स में अलग अलग होते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस हिबिस्कस को रीड करोगे तो अच्छे से रीड करने में आएगा। मैम ये मैं फिनिश इट ऑफ। बाइसेक्सुअल है। हाँ, इसको जल्दी से रीड करें, टाइम खत्म हो गया है। द वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अटैच्ड टू द स्टेम, दैट इज कॉल्ड कंडक्ट। देन व्हाट इज पेटियोल, वो तो पहले ही तुमको बताया। ओव्यूल, द स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे निकलेगा। जब तुम लोग ओव्यूल को सेपरेट करोगे तो उसका पिक्चर क्लिक करना, ओव्यूल को कट करोगे और उसकी पिक्चर क्लिक अलग करना। जो मैंने अभी एक पिक्चर दिखाया था ना तुम्हें, यहाँ पे ये कट किया हुआ पार्ट। दिवजोत, ये सब कुछ करना है और पिक्चर क्लिक करके सेंड करना है मुझे। ओके, ग्रुप में उसमें गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट देंगे तुम्हें, ठीक है। एंड वन दिस टाइप ऑफ थिंग ऑल्सो यू ऑल हैव टू डू, इसका भी पिक्चर आई विल सेंड यू, ऐसा वाला करना है। और एक जो सब पार्ट्स को अलग करके आई टोल्ड यू, ये ओव्यूल वाला पार्ट ओवरी वाला अलग करके कट करके करना है। ओके, एंड यू ऑल हैव टू राइट द नेम ऑफ, उसमें नेम्स भी लिखना है पार्ट्स ऑफ द प्लांट के, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स के। ओके, एनी अदर डाउट? वन इज ओवर। आज तुम लोग टेक्स्ट बुक से रीड करो, थोड़ा सा डॉक्टर बनो आज। ओके, प्लांट का डिसेक्शन करो फ्लावर का, एंड देन लेट मी नो। सिद्धिका राव, ये सब बच्चों को करना है। आई विल गिव यू 10 मार्क्स फॉर दिस डिसेक्शन, फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर 10 मार्क्स। किस किस को बनना है डॉक्टर? मैम मुझे सबको बनना पड़ेगा, लेकिन आज मैम मेरे को सब डॉक्टर कैसे कैसे कटिंग करते हैं मैं देखना है मेरे को। गंदा सा कटिंग किया तो ये मैम सबसे पहला ऑपरेशन होएगा फ्लावर। अक्षय हाथ डॉक्टर बन गए, या जैसे हमने उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, तो अक्षय को थोड़ा सा काम करना बाकी है। और जो तुमने अलग अलग किया उसको चिपका देना, सो दैट आई कैन सी। सिद्धिका के पास भी फ्लावर है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द डॉक्टर्स टुडे, एंड आई विल सेंड यू असाइनमेंट। उसमें सब लोग पिक्चर का एक पीडीएफ, पूरा एक साथ पीडीएफ बनाना कि क्या अलग किया, वो क्या बन गया। पेटल, सेपल, पिस्टल, स्टेमन, ओवरी, ओवरी का कट करके एकदम स्ट्रेट कट करोगे तो इनर पार्ट का पिक्चर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे। मैम हमें उनके नीचे, जैसे हमने सेपल्स लिखा, उसके नीचे हमें से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम